The state of Gujarat has begun to hum with the noise of its impending legislative elections, whose dates are still uncertain. The country's electorate, as well as political observers, are increasingly focused on them because they might foreshadow trends in the 2024 parliamentary elections. Shaking things up a bit is Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, the grandee of the Aam Aadmi Party, with the ambitions of winning a few seats in the state legislature, if not altogether sweep the elections. Although generally regarded as an unshakable fiefdom of Prime Minister Narendra Modi and his Bharatiya Janata Party, the state has a rich history of strongly contrarian voices. One of those voices is the noted columnist, writer, and increasingly admired satirist Urvish Kothari. Living in Ahmedabad, the bastion of Hindutva, Kothari has crafted a niche for himself on social media with his subtle but pungent and persistent needling of the right wing universe. He has been a journalist for over 2.5 decades, during which he has written widely read columns and satirical pieces in all top Gujarati publications. He is also a well regarded writer. In order to widen his audience, Kothari has in recent times started offering his often stinging perspectives in Hindi on Twitter and elsewhere, drawing many non Gujaratis among his audience. Mayank Shah report spoke to Urvish Kothari to get a sense of Gujarat's electoral impulses and what it means to deploy humor in dour times. Urvish Kothari. Okay. Uh, First of all, welcome, Urvish Bhai. It's a great pleasure to have you on. I've been watching some of your satirical videos, and that sets me up for the first question. How is it Yeah. that you are fully intact physically? Yeah, it's not that complicated after all. Because basically, I'll try to express more in Hindi because I'm more जी जी comfortable at हाँ हाँ Hindi. बिल्कुल 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 तो बेसिकली ये होता है कि मैं अक्सर कहता था, क्योंकि मैं बेसिकली तो गुजराती हूँ, गुजराती में लिखता रहा। जी ये जो सरकार है गुजरात में, तो मैं अक्सर कहता हूँ दिल्ली वालों से, अक्सर 2014 में मैं कहता था कि आप जिस शोले की राह देख रहे हैं, बड़ी उत्सुकता से प्रशंसा कर रहे हैं, हम तो वो शोले 2002 से देख रहे हैं, तो आप मुझे मत समझाइए कि शोले क्या होती है। तो क्रिटिकल तो मैं पहले से रहा था, लेकिन मैंने एक चीज इनकी देखी है कि आप जब तक इनको इनके कोर को बहुत डायरेक्टली पिंच नहीं करते, they tend to ignore you. So basically, they won't go after a person like me because they अच्छा would think कि भाई इसको क्यों बड़ा बनाना चाहिए ना, इसको हाँ क्यों हाँ कुछ बिल्कुल करना चाहिए। So I wrote once that इमरजेंसी जो हम कहते हैं कि आपातकाल होता है या फ्रीडम छीन ली जाती है, तो एक तो ये होता है तरीका कि आपके मुंह पर मैं अपना हाथ रख दूं, आपको बोलने ना दूं। और दूसरा एक मौलिक तरीका होता है कि मैं मेरे ऑडियंस को ऐसा कल्टीवेट करूं कि फिर आप जितना बोलो, जो भी बोलो, इनके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। तो मैं आपको कहूंगा कि बोलते जाओ ना, आपको सुनता कौन है। और मेरे जैसे कुछ लोग हैं और भी है, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ। तो द गवर्नमेंट इज नॉट आफ्टर पीपल लाइक अस। अच्छा आप अगर आप न्यूज में हैं, फर्ज कीजिए कि मैं पत्रकार रिपोर्ट हूँ, बीट रिपोर्टिंग करता हूँ, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता हूँ, और मैं अगर 4 स्टोरी डाल देता हूँ और खुदा ना खास्ता मेरे एडिटर ने छाप दी, जो कि बहुत कम संभावना आजकल होती है, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो अच्छा फिर तो फिर तो फिर मैं रहूंगा तो इंटेक्ट, लेकिन मेरी स्पाइन आपको इंटेक्ट नहीं मिलेगी। यानी जहां तक मेरी समझ है, व्यंग्यकार होना इतना खतरा नहीं है जितना कि सीधा पत्रकार होना गुजरात में। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि एक आपका क्या होता है, एक ऑडियंस आपका हो चुका है। अब इनका क्या है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो स्टाइल है, तो उन्होंने अपना एक 30-35-40% जितना एक क्लाइंटेल बना लिया है। आप इनको कोई भी नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बना लिया है। अब क्या है कि वो इन लोगों को कैटर करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बाकी के लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ऑफेंड होते हैं, रिडिक्यूल करते हैं, दे आर लिस्ट कंसर्न।
उनको तो वो जो है इनको फीड करना है, तो हम इनको ऐसा नहीं कि उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दे आर अश्योर्ड बेसिकली। तो आप देखिए कि भाई हाँ, एक एक चीज इसमें आप मैं वो डाल देना चाहता हूँ उसमें कि आप ये मैं इसीलिए कह सकता हूँ कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसीलिए कह सकता हूँ। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैंने जो कहा ये मुझ पर लागू नहीं होगा, दैट विल बी a different ball game, and that is very scary. Yeah. We are about 6 weeks away from 6 or 8 weeks away from the Gujarat legislative election. I want to understand from you जो बिल्किस बानो का जो मामला है, उस पे आपका क्या नजरिया है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि गुजरात जैसे जैसे राज्य में इस तरह की एंटीपैथी हो ये मामले को लेकर, मेरी तो समझ में नहीं आती ये बात, ऐसा क्यों है? वैसे समझ में तो मेरी भी नहीं आती। मैंने कहा था किसी से या शायद लिखा था कि ये बिल्किस बानो वाला जो किस्सा हुआ जिसमें गैंग रेपिस्टों को, जो कि प्रूवन गैंग रेपिस्ट है, उनको स्टेट की ओर से रेमिशन दिया गया, तो दैट वाज अ न्यू लॉ। आज तक हम समझते थे, और इन्होंने हमेशा हमको गलत ठहराया है। इतना क्रेडिट आपको देना पड़ेगा ये राज्य को कि आप सोचते हैं कि ये इससे नीचे नहीं जा सकते, लेकिन ये आपको जाकर दिखाएंगे कि हम इससे भी नीचे जा सकते हैं। तो हमने ये सोचा था कि भाई 2002 और इसके बाद जो कुछ हुआ, तो इसमें जो मर्डर है, खून है, उसका एक स्वाभाविकीकरण, नॉर्मलाइजेशन हो गया कि भाई यू कैन मर्डर अ पर्सन ऑफ ऑपोजिट फेथ, ऑपोजिट इनटू इन्वर्टेड। लेकिन रेप के बारे में वो चीज नहीं थी कि भाई रेप, हाँ, रेप उतना नॉर्मलाइज, मतलब ऐसा नहीं था कि उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो उतना मेन स्ट्रीमाइजेशन, उतना नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था कि आप रेपिस्टों को बख्श दे एंड यू कैन गेट अवे विद इट, इवन गेट पब्लिक एक्कोलेड्स। तो ये जो चीज है, वो बिल्किस बानो का जो किस्सा हुआ, और जो स्टेट, और आज ही अखबार में कल ही वो समाचार आए हैं कि केंद्र सरकार कंसेंटेड इट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंटेड इट। Yeah, in fact, what I read is it came directly from the Home Minister. Yeah. I mean, who is central government? Who else is central government? Yeah, that's the allegation, but and they haven't denied it so far, because I heard a Congress spokesperson saying it pretty candidly and categorically कि ये जो हुआ है वो गृह मंत्री के नजर में हुआ है, उनकी निगरानी में हुआ है, और उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगा अगर इस तरह से हम इस हद तक पहुंच गए तो फिर बचता क्या है? और देखिए मयंक भाई, अब दिक्कत ये है कि मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है वो है, अमित शाह जो है वो है, मतलब लोगों को मालूम है क्या है, मुझे आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग हैं, जिनको हम हमारे जैसे लोग कहते हैं, पीपल लाइक अस, जिनका फर्ज कीजिए कि जिनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, अमित भाई होम मिनिस्टर है कि नहीं है, मोदी पीएम है कि नहीं है, इनको एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता पर से, कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट उनका ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो है, जिनको हम अपने जैसे लोग मानकर चलते थे आज तक, उन लोगों में से काफी लोगों के दिमाग में ये चीज का नॉर्मलाइज हो जाना, ये स्टेट के रेमिशन से भी बड़ा झटका है हमारे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लेकिन इसको रिवर्स कर सकते हैं क्या? आप ये समझते हैं कि इसको कुछ इसका उपाय है इस चीज का? नहीं, अभी इस चीज का जो उपाय है, क्योंकि इट्स लार्जर पिक्चर, एक पूरा सोशल फैब्रिक जो था, अब अक्सर ऐसा होता है कि सोशल फैब्रिक जब होता है तो सोशल फैब्रिक ऑर्गेनिक होता है, तार वाला होता है, कई बार वो फट जाता है, तार हो जाता है, फिर उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो रीजनरेट भी होता है। वो इसका एक डायनामिज्म होता है सोशल फैब्रिक का। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ अरसे से सोशल फैब्रिक तार हो रहा है, और जिस लेवल पे, जिस डेप्थ से वो हो रहा है, मैं समझता हूं कि बहुत देर लग जाएगी, दशकों लग जाएंगे ये सोशल फैब्रिक को रीजनरेट होने में। और ये कहते बड़ा दुख हो रहा है कि ये 2-3-4 दशक का मामला कम से कम
2-3-4 दशक का। अब आज हम जहाँ खड़े हैं जिस जंक्चर पे, वहीं खड़े रहकर ऐसा लगता है कि 2-3-4 दशक तो लग जाएंगे। तो फिर मुझे ये बताइए, इसका इसका मतलब तो यही हुआ कि ना तो गुजरात में और ना तो भारत में कोई सीरियस पुशबैक हो रहा है इस बात को लेके, सिवा जैसे राहुल गांधी की जो यात्रा चल पड़ी है और उसमें कुछ ट्रैक्शन नजर आ रहा है. He is able to generate some enthusiasm, but beyond that, I don't see any serious counter to the juggernaut that is running right now. सही कह रहे हैं आप। और इसमें क्या होता है, 2-3-4 फैक्टर्स हम अगर देखें तो एक जिसको हम ब्रॉडली सिविल सोसाइटी कहते थे, तो सिविल सोसाइटी होती थी जी. उसमें एसेंशियली एनजीओज नहीं, एनजीओज तो थे, उसके अलावा कुछ लोग भी थे, कुछ संस्थाएं भी थी, कुछ लोकल फोर्सेस थे एकदम। कि भाई गुजरात में भी आप जानते हैं कि कितने सारे रीजन्स है, तो वो रीजन्स के कुछ फोर्सेस रहेंगे। कोई आप साउथ गुजरात में जाएंगे या खेड़ा में जाएंगे तो कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक वो पावर सेंटर होता था। तो इन्होंने क्या किया है कि ऐसी जो जो जगहें थी, छोटे से छोटा पावर सेंटर था, एजुकेशन ले लीजिए, यूनिवर्सिटी ले लीजिए, कुछ भी, मतलब जितने भी पावर सेंटर हो सकते थे, ये सब उन्होंने एक एक करके कैप्चर कर लिए। अब एक चीज ये है कि आप सिविक मूवमेंट जो हम कहते हैं वो कितनी भी कर लीजिए आप, हैं, आप नोटबंदी हुई, ये हुआ वो हुआ, हम जिंदाबाद मुर्दाबाद कितना भी कर ले, अल्टीमेटली इट हैज टू बी चैनलाइज्ड in a political way and it has to end in a voting booth. Right. चेंज की जगह तो एक ही है, आपको ये रेजिम नहीं चाहिए तो यू हैव टू वोट इट आउट, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम कोई हिंसा में मानते नहीं है। Right. तो ये जो है कि ये जो एक पूरा एक क्या कहते हैं कि एक एक्सटेंशन के तरीके से होता है कि एक चीज नीचे से शुरू होती है, ट्रैक्शन उसका बनता है, कुछ उसकी ग्रेविटी बनती है, ऊपर जाके फिर कोई पॉलिटिकल फोर्स उसे लेता है, जुड़ता है, दोनों में आपस में थोड़ी एक्सचेंज होती है, कुछ इनके आइडिया पॉलिटिकल लेते हैं, कुछ पॉलिटिकल के आइडिया ये लेते हैं, और एक चीज पे सहमति बनती है कि ये राज हमको नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली इट हैज टू एंड इन ए पॉलिटिकल थिंग। सिविक लेवल पर आप कितना भी कर लीजिए, उसका अगर पॉलिटिकल वो नहीं बन पाया, या तो लोगों में उतना गुस्सा नहीं बन पाया कि हमको काला चोर चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा, ये लेवल का गुस्सा जो इंदिरा गांधी के जमाने में इमरजेंसी में, उस वक्त भी हालांकि इतना सारा तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी तो भाई ये नहीं चाहिए हमको, अपने गुजराती में जाने के ये धोड़ा धर्म ही ना જોઈએ। तो ऐसा जब तक ऐसा नहीं बनता है, तो अब इनका क्या है, मैं अक्सर एक बड़ा अलग उदाहरण देता हूँ कि भाई फेसबुक जो है, और फेसबुक और उसके पहले के जो कुछ गूगल वगैरह, वो गराज स्टार्टअप हुए, लेकिन वो आज इतने बड़े हैं और वो ध्यान रखेंगे कि अब कोई गराज स्टार्टअप गूगल ना बन जाए जी। अब कोई गराज स्टार्टअप फेसबुक ना बन जाए, उनका कॉपी करो, उनको कोर्ट में ले जाओ, उन पे ये करो, खरीद लो। तो बीजेपी इज लाइक फेसबुक। वो रेबल ब्राउजर से वो तेल के डिब्बे का सरगस निकाल के, आप तो जानते हैं अशोक भट्ट निकाला करते थे अक्सर, बिल्कुल। सड़कों पे आकर विरोध करके छोटी सी छोटी चीज को इसके साथ लोगों को जोड़ के, संस्थाओं को जोड़ के, एक विचारधारा, फिर कम्युनल, ये पूरा उन्होंने एक, अब वो वहां तक पहुंच गए हैं कि वो जानते हैं कि जहां कहीं भी छोटे से छोटी भी ऐसी कोई मूवमेंट आकार नहीं लेनी चाहिए, जहां कहीं भी वो पैदा होती है, इसको बाय बैक बोरो स्टील क्रश कुछ भी करो। That approach shows in the way they overthrow state governments or buy them out straight away. तो अब क्या आपके पास विकल्प रह गए भाई? चुनाव जीतो कुछ भी करके, चुनाव हार गए तो सरकार खरीद लो जी। तो वो जो चीज होती है, गुजरात में आप देखिए कि लास्ट चुनाव जो थे उसमें आप जानते हैं कि 10 सीट का फासला रह गया। अब कांग्रेस जीतती है, उसका कोई आनंद नहीं होता है, वो अलग बात है, लेकिन ये हारते हैं उसका तो होता है। तो 10 सीटों का फासला इतने
मोदी का इतना इमेज, इतना ये वो, इतना तामझाम, ये सब करके भी 10 सीट का फासला रह गया था। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो मतलब वो एकदम कगार पे थे हारने की। हाँ जी। लेकिन अब आज क्या सिचुएशन है आप देखिए कि उन्होंने उस वक्त के जो जो फोर्सेस थे उसमें से ज्यादातर फोर्सेस को ठिकाने लगा दिया है। अच्छा, यानी आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये जो यू स्पोक ऑफ वोटिंग रेजिम आउट, अब हम्म। 6-8 हफ्तों में गुजरात में चुनाव होंगे। जी। दूर से मैं देख रहा हूँ 10,000 मील से, आप जो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कम से कम ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद थोड़ा बहुत काउंटर बने बीजेपी के खिलाफ। पता नहीं कितना होगा, लेकिन दूर से जैसे मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ उनको एक आध 12, 10, 12, 15 या 5, अगर 5 सीट भी मिलती है मेरे हिसाब से, इट्स अ रिमार्केबल अकम्प्लिशमेंट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल, मतलब देखिए, ये चुनाव तो मेरा कोई एक्सपर्टीज का विषय ही नहीं है, तो उसमें मेरा कोई इन्फॉर्म्ड वो कोई एस्टिमेट वाला तो नहीं है। लेकिन एक लेमैन के हिसाब से जो दिखता है वो चीज़ ये है कि आम आदमी वाले जोर तो बहुत कर रहे हैं, और इनका इनका जो बीच में ही मैंने वो द प्रिंट में एक पीस लिखा था कि अरविंद केजरीवाल कैसे स्टेप बाय स्टेप नरेंद्र मोदी का स्टाइल से प्रेरणा लेते हैं, कॉपी करते हैं, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन प्रेरणा लेते ही अच्छा लगेगा जरा। तो ये उनका जो पूरा, अब देखिए ये पहली बार है एक तरह से देखिए तो उनका जो सीरियस पार्टिसिपेशन है चुनाव में, ये पहली बार है। तो अब इस बार वो 5, 10, 15, 20, कुछ लोग कहते हैं 25, 30 तक सीट, कुछ लोग कहते हैं कि इनके इतने सीट आ सकते हैं। तो इसमें इफेक्टिवली चूंकि बीजेपी के जगरनॉट के सामने एक कोई आके खड़ा रहता है तो अच्छा तो लगता है। अब दिक्कत ये है कि ये उनका भाई ही है। अब जब मैं भाई कहता हूं तो मैं ये थियरी में नहीं जाता कि आरएसएस का बी टीम है, बीजेपी का बी टीम, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। इनका जो हम जिसको वर्ल्ड व्यू कहते हैं, केजरीवाल का जो वर्ल्ड व्यू है वो मोदी से ज्यादा अलग नहीं है। उनका जो एक नजरिया है पूरा देखने का, समाज को देखने का, समाज के प्रश्नों को देखने का और उसको हल करने का, तो उसमें नरेंद्र मोदी जो चीजें जिसकी बहुत आक्रामकता से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रचार, नरेंद्र मोदी का तो पूरा राज ही प्रचार पर चलता है जी। तो अरविंद भाई भी अब वो जो है वो लाइन में बड़ी अच्छे से उसमें फिट हो गए। आप देखिए उनकी एड वगैरह जो है, जिस तरीके से, मतलब जो चीज सीखने में भाजपा को फर्ज कीजिए कि 10 साल लगे, तो केजरीवाल इज अ क्विक लर्नर। राइट। तो उनका जो स्ट्रेटेजी है, चुनाव स्ट्रेटेजी, तो इस बार वो कितना जीतते वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस बार उनका वो प्रेजेंस बना पाएंगे और कांग्रेस को जो है वो एकदम डाउन और आउट करके जाएंगे। तो ये अगर कर सकते हैं तो ये उनके लिए और बीजेपी के लिए थोड़ी चिंता की बात, और इनके लिए, केजरीवाल के लिए एक बड़ी बात होगी। राइट। आई मीन एक तरह से आप मुझे ये कह रहे हैं कि जैसे लोहा लोहे को काटता है। हाँ, यही बात हो रही है। जैसे यहाँ एक there was in one of those Indiana Jones movies, there is a line, you're bringing not in that, I think one of those, that it says that you're bringing a knife to a gunfight. यहाँ मैं तो ये कहूंगा कि अब तक ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है is bringing an argument to a gunfight. Forget knife. तो अगर ऐसे माहौल में कांग्रेस क्या उम्मीद रख सकती है कि गुजरात में कुछ वो बदलाव ला सके? तो कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, मुझे गुजरात में कांग्रेस कुछ कर पाएगी ऐसा लग नहीं रहा है। तो आप ये कहेंगे कि फिलहाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही एक काउंटर है गुजरात में उनके लिए? अब देखिए, दो चीज है। मुझे तो क्या है, मेरी दिक्कत ये है कि मुझे तो ये पार्टी पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। अब ज्यादातर लोग ये नहीं मानते, इसको मेरी नम्रता मानते, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि 2002 अगर ना हुआ होता तो मैं कुछ और ही लिख रहा होता। जी। तो पहली बात मैं ये कहूंगा, आपने जो कहा कि लोहा लोहे को काटता है,
लेकिन इसमें एक याद रखने वाली बात ये है कि फिर हमारे पास तो लोहा ही रह जाता है। हाँ, क्योंकि वी एंड अप विद दैट, राइट, वो बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमारा कोई उसमें कोई फायदा नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि आप देखिए कि आपने बिल्कुल सही ढंग से कहा, कांग्रेस की जो सूरत, उसके जो हालात है आपने सही ढंग से बयान किए। लेकिन यही कांग्रेस पिछले चुनाव में 10 सीटों से हार गई, और इसमें ऐसे काफी बड़े बड़े नेता थे जो अगर जीतते तो कांग्रेस शायद जीत जाती। और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस का जीतना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खुशी की बात ऐसे नहीं है, लेकिन इनको रोकना है, बेसिकली बात यह है। तो कांग्रेस के पास ऐसा बहुत कुछ है आज भी जिससे कि वो रोक सकते हैं। लेकिन गुजरात में आप जानते हैं, आप तो मेरे से बहुत सीनियर है गुजरात में, आप जानते हैं कि गुजरात कांग्रेस में जो दिक्कत रही वो हमेशा ज्यादा सेनापति और कम सैन्य की रही। जी बिल्कुल। और उसमें ज्यादातर नुकसान सेनापतियों की अंदरूनी लड़ाई से हुआ है। राइट। तो गुजरात कांग्रेस अगर एकजुट हो जाए और जो रियल इश्यूज है उसको हाईलाइट, कम्युनिकेशन में कांग्रेस जो है वो बड़ी लेट लर्नर होती है, बड़ी स्लो लर्नर होती है। अब देखिए उनके पास, अब पिछले चुनाव में जो 3 लोग थे इसमें से मेवानी अब कांग्रेस के पास है, जिग्नेश मेवानी। तो ऐसे कुछ यंग लोग आप इकट्ठा करिए, आप नया स्ट्रेटेजी करिए। और एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी इनविंसिबल है, ये भारत की सबसे बड़ी मीत है। ये अगर आप समझ लें और इस हिसाब से आप अगर तैयारी करें, कोशिश करें, तो आज नहीं तो कल। मैं आपको सही बता रहा हूँ, 2014 में जब ये हार गए ना, मैं बड़ा खुश हुआ था। इस हिसाब से खुश हुआ था कि अभी ये जरा बैठ कर सोचेंगे कि भाई हमको क्या करना चाहिए। दे विल गैदर देयरसेल्व्स एंड 10 साल में वो तैयार हो जाएंगे। इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो वो एक एक्सपेक्टेड है कांग्रेस से कि भाई ये अपने आप को इकट्ठा करे, लोगों को। और लोग सचमुच में लोग काफी दुखी हैं, और उनको जेन्युइनली इश्यूज है, क्योंकि अभी जो भक्तगण है वो जैसे मैंने कहा कि 30-40% है, तो बाकी के लोग बहुत है, उसमें से वोकल नहीं है ऐसे लोगों को आप छोड़िए, तो भी बहुत सारे लोग है जो जेन्युइनली दुखी है। तो इनको अगर इन सब के पास आप किसी को भी पूछेंगे, वो कहेंगे कि यार वोट किसको देंगे, कांग्रेस को देंगे। अभी इस बार केजरीवाल आए हैं तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को इसका जवाब देना है कि हाँ आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम ये करेंगे। सबसे बड़ी मेरे हिसाब से फेलियर अगर देखें पिछले 20 सालों की, तो सेक्युलर साइड, जिसको कि सो कॉल्ड सेक्युलर साइड, आई वुड से, बिकॉज दैट्स आल्सो डीपली कॉम्प्रोमाइज। वहां नरेंद्र मोदी के लेवल का, नरेंद्र मोदी तो छोड़ दीजिए, अमित शाह के कद का भी कोई काउंटर वो बना नहीं पाए गुजरात में। इतने साल हो गए, करीब 25 साल, यानी क्वार्टर सेंचुरी से डोमिनेंस है बीजेपी का गुजरात में, और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरी, अगेन सिटिंग अफार, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। आप तो वहां रहते हैं, आपको आप वो देखिए, रियल पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, आप पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, प्योरली एज समवन हु ऑब्जर्व्स लाइफ, ऐसा नहीं, क्यों? देखिए मयंक भाई, ऐसा है कि आपको चुनाव जीतना है तो आपको बूथ पर खड़े रहने के लिए 4 आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें कितने बूथ है उसके गुना 4 करो, उतने आदमी है आपके पास जमीन पर, पर्चे बांटने के लिए आदमी है आपके पास जमीन पर। नहीं है तो आर यू बॉदर्ड कि हमारे पास ये नहीं है, तो चलिए करते हैं। चलिए एक बार एक चुनाव में आपको पता नहीं चला, कोई आकर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में पेज प्रमुख तक बना गया, आपके पास खड़े रहने के लिए 4 बंदे नहीं है, ठीक है, चलिए आपको एक बार पता नहीं चला, फिर तो पता चलता है ना, चुनाव तो हर 5 साल आता है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो बड़े नेताओं की एक सूत्रता नहीं होने के कारण, और कांग्रेस में एक दूसरी चीज ये होती है, आप वो वंशवाद के हिसाब से खानदानी नहीं कराओ, लेकिन वो एक खानदानी टाइप के जो लोग होते हैं, इनको ऐसा लगता है
कि भाई हमारा तो इतना डीप पेनिट्रेशन है कि हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, लोग यूं ही इनसे जब तंग आ जाएंगे तो हमको जिता देंगे। जी ये एक जो मानसिकता होती है, ये भी कांग्रेस में अक्सर, कांग्रेस की नेतागिरी में अक्सर देखने को मिलती है कि भाई लोग जाएंगे कहाँ, है ना, ये तो बड़े ही दुष्ट लोग हैं, तो इनसे तो लोग एकदम से एक कर जाएंगे, फिर हमको जिता देंगे। इनको कांग्रेस को ये रियलाइज नहीं होता कि अब वो डिफॉल्ट वोटिंग वाला जमाना नहीं रहा। राइट जब कोई और नहीं है तो लोग आपको जिता देंगे, ऐसा नहीं है। आपको मतलब यू हैव टू रीच आउट टू पीपल। वो इनसे उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है और उतनी एनर्जी से नहीं हो पा रहा है। yeah I'm glad you mentioned that. उस सिलसिले में अगर भारत जोड़ो यात्रा को देखें हम, ये पहला शायद अवसर है कि राहुल गांधी सड़कों पे इस तरह उतर आए हैं और काफी उत्साह से लोग उनको मिल रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूं अब तक। अभी जिसका परिणाम चुनाव में अच्छा हो बुरा हो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम लोगों ने देखा कि ये आदमी जो है अभी जो प्रधानमंत्री उनसे कहीं अलग है। The contrast is very clear. I don't know whether that will translate into anything or whether that will have any impact in Gujarat at all. मुझे पता नहीं है यहाँ से। What is your take on भारत जोड़ो यात्रा generally? नहीं, देखिए इसमें दो तीन चीज है मैं देखता हूँ। एक तो गुजरात में तो वो आने वाले ही नहीं है, वो भी जानते हैं कि गुजरात कांग्रेस के क्या हालात है, तो वो इज नॉट कमिंग टू गुजरात ड्यूरिंग द यात्रा, इट्स नॉट इन हिज रूट। सो अब दूसरी चीज ये है कि देखिए इंसानी तौर पे मैं और कोई भी मानेगा कि भाई राहुल गांधी इज अ डिसेंट पर्सन, लेकिन अब चीज ये नहीं है कि आपको कौन डिसेंट है ये तय नहीं करना है, आपको ये देखना है कि भाई कौन किसको देश चलाना है। तो मैं भी चाहूंगा कि भाई राहुल गांधी किस्म का जो बंदा है जिसमें एक प्रकार का थोड़ा एक मानवीय संवेदनाएं है, तो उसमें और भी कुछ चीजें अगर जुड़ जाए या तो किसी की सलाह वगैरह ले तो कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन ये यात्रा के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि एक दूसरा एक्सट्रीम रिएक्शन होता है। पहली बात यह है कि इन्होंने जो यात्रा की इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। ऐसा इनिशिएटिव जब आप लेते हैं तो आपसे गलतियां भी होती है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ करते हैं तो गलतियां तो होनी है। तो पहली चीज ये है कि ये जो जोड़ने वाला काम है, रीचिंग आउट टू कॉमन पीपल, इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो इसके लिए इनको राहुल गांधी को फुल क्रेडिट मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि कई लोग जो है जो हमारे जैसे हैं जो कि इनसे दुखी हैं ये प्रेजेंट सरकार से, तो उनका मैंने ये देखा रुझान कि वो फिर राहुल गांधी की यात्रा की बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली आकलन करने लगते हैं, बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली पॉजिटिव आकलन करने लगते हैं और ऐसा खुद मान लेते हैं और दूसरों को मनवाते हैं कि ये तो बड़ा क्रांतिकारी चीज है और इससे बड़ी क्रांति हो जाएगी। तो एक चीज से क्रांति नहीं होती है। आई वुड से इट इज अ वेरी गुड बिगिनिंग, nothing less, nothing more. Right. So it's a very good beginning and he keeps up like this. अगले 2 साल में ये करते हैं तो there will be definitely some results, positive results. Right. लेकिन एक यात्रा से इतने साल आप स्लम्बर में हैं और एक यात्रा करते हैं तो आई मीन nobody would expect कि भाई इसमें, मैं तो सोचता हूँ कि खुद राहुल गांधी ये नहीं समझते होंगे कि इसमें कुछ चमत्कार हो जाएगा। So as I said, it is a very good beginning, very much required beginning, but it's a beginning, and Right. there's a long way to go. No, true. Literally and figuratively, is a long way to go. yeah. To come to your what you do, satire जो है आपका एक घट रहा है जैसे मैं दूर से देखता हूँ, और गुजरात में रह के सामाजिक व्यवस्था पे या राजकीय व्यवस्था पे बहुत ही सटली हंसना, वो आपने कब सोचा और क्यों सोचा? तो वैसे तो गुजराती में मैं 1999 से लिख रहा हूँ, वीकली कॉलम मेरा आता था बहुत, मैंने 2018 तक लिखा, और ऐसा नहीं कि कोई पैरेलल स्ट्रीम में लिखा। बड़े जो अखबार है गुजरात के, गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर,
उसमें मेरा सेटर का हास्य व्यंग का वीकली कॉलम आता था। तो लोग नाराज तो खैर थोड़े बहुत होते थे, लेकिन मैंने जैसे कहा कि ठीक है चलिए, लोग गाली देके आगे निकल जाते हैं, बिकॉज वो उतना कोई उसमें डेंट नहीं करता, उतना उसमें कोई सीधा नुकसान नहीं करता। लेकिन मेरी तो ये प्रकृति, और ये मेरी प्रकृति में है ये सटायर वाली चीज। तो पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो मैं उनके ऊपर भी लिखता था, और मैं तो ये मानता हूँ, मेरा धर्म ये मानता हूँ एज ए सटायरिस्ट, कि जो भी पावरफुल है, जो बिल्कुल भी सत्ता में है, उसके खिलाफ लिखना बोलना। तो कल अगर ये नहीं रहेंगे, दूसरे कोई आएंगे, दूसरे कोई पक्ष के आएंगे, तो हम तो उनके खिलाफ भी बोलेंगे, उनके खिलाफ भी लिखेंगे। तो ये इनका ग्रेविटी देखना पड़ता है, हर एक की ग्रेविटी अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। तो ये एक चीज है कि गुजरात में और गुजराती में ये दोनों लिखने के बाद कोरोना पीरियड में, और दूसरी एक थोड़ी अलग बात है, लेकिन मैं कह देना चाहूंगा कि जो स्टैंड अप करते थे लोग, मैं बहुत तो नहीं देखता था लेकिन थोड़ी बहुत देख लेता था। तो उसमें एक चीज से मुझे बड़ी कोफ्त होती थी कि जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, वो जो मुझसे भी ज्यादा ये फन जानते हैं, वो लोग खामखा अपने बोलने में हिंदी अंग्रेजी में गाली गलौज करते थे। राइट। अब मुझे मैं प्यूरिटन नहीं हूँ, मुझे गाली से कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जब सटायर करते हैं, जब हंसाते हैं, सटायर करते हैं, तो उसमें गाली का कोई काम नहीं है। Yeah, आपके पास that's a lazy device. yeah, that's the lowest hanging fruit. आप एक गाली डाल देते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि ऑडियंस सिर्फ गाली पे हंस रहा है। जी। So that would be insult of my craft. तो मैं इस तरीके से देखता था। तो मैं अक्सर मन में ही उस वक्त मैं गुजराती में लिखता था, तो मैं मन में ही अपने बारे में भी कुछ ख्याल होते हैं। तो मैं ये सोचता था कि ये तो भाई ये स्टैंड अप तो मैं बहुत आराम से कर जाता, ऐसा मैं सोचता, लेकिन कभी आजमाइश नहीं की थी। तो कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने कहा कि चलिए अब आज तक जो कुछ नहीं किया वो किया जाए। तो एक तो मैं ट्विटर पर आया, और ट्विटर पर आने के बाद 2-3 हफ्ते के बाद मैंने कहा कि चलिए अब ये अक्सर सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, तो देखते हैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मैंने ऐसा तय किया कि मैं हर रोज एक वीडियो डालूंगा सटायर की, और 100 दिन तक डालूंगा हर रोज। अच्छा। तो मैंने पहले 100 दिन तक हर रोज एक वीडियो डाली सटायर की, और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। रिस्पॉन्स तो क्या, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो बहुत आनंद होता है, लेकिन सबसे पहले तो हमको पता चलता है कैसा हो रहा है। Exactly. तो वो मुझे लगा कि नहीं, मेरा जो ख्याल था वो सही था। हिंदी की बेशक एक दिक्कत थी कि एक जो हिंदी बेल्ट का आदमी जो हिंदी बोलता है, ऐसी मेरी हिंदी नहीं थी, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसी हिंदी भी नहीं थी। तो मैंने कहा कि चलिए ये डिसेंट तो है, चल जाएगी। और फिर हिंदी वालों ने भी बहुत प्रोत्साहित, कोई अच्छे अच्छे बड़े लोग हैं, उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहित किया कि आप फिक्र मत करो, हिंदी की बहुत ज्यादा ये भी एक फ्लेवर होती है। और इस तरीके से ये पूरा ये सटायर वाला संसार शुरू हुआ। अच्छा। और मैं जैसे मैंने कहा आपको पहले, मैं देख रहा था वीडियो आपके कुछ, मुझे ये देख के ये लगा कि आप ये महसूस करते हैं या आप ये जानते हैं कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनमें एक मिनिमम तरह का पॉलिटिकल या इमोशनल या सोशल इंटेलिजेंस है। आप ये नहीं सोचते कि मेरा जो ऑडियंस है वो बिल्कुल खाली दिमाग है, ऐसा आप नहीं सोचते। तो ये थोड़ा सा रिस्की अप्रोच है, वो आप कैसे हैंडल करते हैं? नहीं देखिए मैं भाई, इसमें तो ऐसा है, मैं बहुत अलग तरीके से ये काम करता हूँ, ये चीज देखता हूँ। अव्वल तो ये कि ये मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, राइट। तो मैं तो आनंद से करता हूँ। कई लोगों ने बहुत मतलब मेरा भला चाहने वाले तो ये देखकर मेरे संपर्क में आए, कुछ लोगों ने मुझे सुझाया कि तुम यार ये जरा जैकेट बैकेट पहनो, थोड़ा मतलब प्रेजेंटेबल ज्यादा ये करो वो करो। मैंने कहा कि छोड़िए यार, मुझे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं स्क्रिप्ट भी नहीं लिखता। I can believe that. It's extempore. In fact, see, for people like that, I tend to be exactly that. It's much easier than scripting it.
हाँ, तो सोच लेते हैं कि हाँ ये 3 4 5 चीज है, उसके ऊपर कुछ बोलेंगे। एडिटिंग करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हाँ हाँ फर्स्ट ड्राफ्ट में सब कुछ आ जाता है। लेकिन तो मेरा एक अनऑर्गेनाइज्ड किस्म का रहा। दूसरा ये कि अब मुझे आनंद आना चाहिए, और तीसरा ये कि फिर अच्छे सारे लोग, और ट्विटर पे टू माय सरप्राइज मेरे लिए, मैं जिनको बड़ा आदरणीय मानता था सीरियस राइटिंग में या ऐसे प्रकारों में, ऐसे कई लोगों से मेरा परिचय ये सटायर वीडियो से हुआ। अच्छा और उसमें एक ट्विटर पे मैंने एक बड़ा फैसला ये लिया कि मैं गुजराती में कुछ नहीं लिखूंगा। मैं आया तो मैंने कहा कि मैं गुजराती में कुछ नहीं लिखूंगा, और गुजराती में मैंने क्या किया इसके बारे में मैं यहाँ कभी बात नहीं करूंगा। राइट तो आई केम विदाउट ए बैगेज, सो टू से। राइट तो वहां पर जो लोगों ने मुझे डिस्कवर किया, उनको मालूम ही नहीं है कि मैं गुजराती में 25 साल से पत्रकारिता करता हूँ, या जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने काम किया क्या किया, इनको मालूम ही नहीं है। हाँ इनको ऐसा है कि ये कोई गुजराती बंदा है, राइटर है, और अचानक से आ गया। तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि वो जो है वो मेरी एकदम खालिश सटायर की कमाई है, जो मेरे सटायर को ही जानते हैं। और जैसी लास्ट बात ये है कि वो मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है बिल्कुल। राइट तो इसीलिए मैं उसे बहुत लाइटली लेता हूँ। 2 3 4 मित्र ऐसे भी है जिन्होंने कहा कि चलिए हम को राइट करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। एक बंदे ने कहा कि आप मेरे लिए शो में लिखिए। तो मैंने कहा कि छोड़िए यार, मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें करनी कि ये तो आनंद के लिए करता हूँ। एब्सोल्युटली तो घर बैठे अगर मैं मेरे हिसाब से मेरे मन में आए और कुछ करूं तो ऐसा आपको मंजूर है तो करते हैं, वरना मुझे बंधना नहीं है इसमें। बिल्कुल आई एग्री विद यू तो वो I'm glad you're doing that because it regiments you. और ऐसा नहीं कि वो 25 साल, आप तो जानते हैं प्रिंट जर्नलिज्म तो 25 साल रेजिमेंटाइजेशन वो भी आता है, लेकिन इसमें वो जरूरत नहीं है, आनंद आता है। और थोड़ा बहुत मतलब ऐसा भी नहीं कि संत नहीं है, तो थोड़े बहुत लोग जानते हैं तो अच्छा लगता है, कोई प्रशंसा करता है तो अच्छा लगता है। हाँ जी, applause is intoxicating, yes. बिल्कुल, लेकिन वो अपलॉज से फिर बंध जाना, या आपको शायद आश्चर्य होगा कि जब 100 वीडियो हो गए तो काफी मतलब अच्छे लोग ये सब जानने लगे। तो मैंने एक वीडियो डाला और कहा कि भाई चलिए टाटा बाय बाय, मैं तो जाता हूँ, क्योंकि मुझे तो यही देखना था कि मुझे आता है कि नहीं आता है। अब मुझे लगता है कि आता है तो मैं जाता हूँ। तो काफी कुछ लोगों ने कहा कि यार ऐसे भी क्या है, हर रोज मत कीजिए, हफ्ते में 1 आध बार कीजिए, लेकिन ऐसे चले मत जाइए। तो मैंने कहा कि चलिए भाई ठीक है, इतने लोग कहते हैं तो कुछ अच्छा होगा तो ऐसे करते हैं मतलब। लेकिन बंद जाना, तो अगर किसी शो या एक यहाँ के एक टेलीविजन चैनल ने मुझे कहा था अहमदाबाद के, तो मैंने कहा कि देखो यार 2 3 चीज मैं नहीं करता। एक तो सब्जेक्ट मैं तय करूंगा, ड्यूरेशन मेरा रहेगा। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट तय मैं करूंगा। और ये मत कहना कि आपने नरेंद्र मोदी के बारे में 1 लाइन बोले तो राहुल गांधी के बारे में 1 लाइन बोलनी पड़ेगी। आई डोंट वर्क दैट वे। तो वो एक चीज है। और दूसरी कि मैं अपने आनंद से करता हूँ तो अपने आनंद से करता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं मुफ्त नहीं करूंगा। नहीं, मुफ्त में कुछ मत करना भाई। ट्रस्ट मी, समवन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ दैट। मैं तो आजकल वैसे आई एम नॉट सक्सेसफुल। I've written about 11 ghost written books so far. Apart from 4 of my own. तो होता ये है उर्वेश भाई कि जैसे अभी मैं परसों ही किसी से बात कर रहा था, he found out about my ghost writing through someone. तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मुझे इंटरेस्ट है तो कुछ बात करें। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। तो बात करने के बाद उनका ईमेल आया कि भाई आप कुछ सैंपल भेजेंगे। मैंने कहा देखिए, मैं बड़े सभ्यता से आपसे कहूंगा, आप इतना समझ लीजिए कि इतने सालों के बाद मैं सैंपल वैंपल किसी को भेजता नहीं हूँ। इतने साल तो छोड़ दीजिए, मैं पहले साल में भी आपको नहीं भेजता, क्योंकि मुझे मेरे हुनर पे इतना यकीन है कि और कोई चर्चा है ही नहीं। आप कितना देंगे पैसा, वही चर्चा है और कुछ नहीं है।
बिल्कुल And then they were surprised. They thought I was rude. I said, अगर नहीं करना है तो मत करिए आप. लेकिन that's how हाँ it हाँ is. हाँ। तो इसमें रूडनेस की कोई बात नहीं होती है, क्लैरिटी की बात होती है कि भाई मैं इस तरह से काम करता हूँ, इस तरह से नहीं करता। और देखिए, अगर अगर कल जाकर कंपल्जन हुआ कि भाई रोटी कमाने की कंपल्जन है, पैसे नहीं है, बच्ची को पढ़ाना है, खिलाना है, तो देन मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा ना। आज ऐसी कोई जरूरत नहीं है तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज, मैं तो बिल्कुल अपने बिल्कुल. आनंद से काम करूंगा। जी अभी लेकिन आप अभी लिखते रहते हैं ना अभी भी? जी जी, मैं मेरा लिखना चालू है। ये मेरा पब्लिकेशन है सार्थक प्रकाशन करके, तो उसमें गुजराती किताबें कुछ हम चुनिंदा पब्लिश करते हैं। फिर मेरा एक 6 मंथली है, हाफ ईयरली मैगजीन सार्थक जलसो करके, हाँ तो हाँ. वो भी इसके 17 इश्यूज रेगुलरली अभी वो निकलता है, उसके भी हुए हैं। तो वो एक होता है। द प्रिंट में कभी कभार मैं हिस्टोरिकल चीज़ों पे या तो कॉन्टेम्प्ररी कुछ लिखता हूँ। और दूसरा भी मेरा रिसर्च वाला एक काम भी गांधी के ऊपर और ऐसा जी थोड़ा बहुत चलता रहता जी. है। तो अब प्रवृत्तियां तो काफी है। अच्छा, जहां तक मेरी जानकारी है, आपको सरदार पटेल पे आपने काफी काम किया है. जी जी और सरदार पटेल जो हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है भारतीय इतिहास के, जिसको जी कि तरह तरह के लोग जो हैं वो हाईजैक करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं. बिल्कुल। आप रहते हैं अहमदाबाद में, बारडोली के काफी नजदीक, जहां से सरदार की शुरुआत हुई. जी अहमदाबाद में सरदार म्यूजियम, आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स. जी एंड सरदार, the way I understood him, was a very crusty, rustic, direct, blunt man. बिल्कुल। और he would have told off, आजकल जो जिनको सेलिब्रेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको भी उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट तरह से कहा होगा कि देखिए, आप इस विषय पे मेरे साथ बात मत करिए, मैं आपसे बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ. जी ऐसे आदमी के लिए ऐसा क्यों हुआ कि बीजेपी उसको हाईजैक करके ले गई? अब ये जो है, ये तो एक हमेशा ये मसला रहा है। मैं तो इस दिन की राह देख रहा हूँ जब बीजेपी वाले नेहरू को हाईजैक करके ले जाएं, क्योंकि अब हाईजैकर क्या करेगा, हाईजैकिंग करेगा ना। अब देखिए, इनका जो आरएसएस का वो जो ऐसा सलामी होता है, हाँ, नमस्ते सदा हाँ वत्सल करते वक्त, तो वो सलामी कांग्रेस की है, कांग्रेस सेवा दल की है, आरएसएस की ओरिजिनल नहीं है। तो वो उनका यूनिफॉर्म से लेके वंदे मातरम से लेके, अब इनके पास क्या है, ये बेचारे ये आरएसएस वगैरह जो है, इनके पास अपना ओरिजिनल कुछ वो मूवमेंट में है नहीं। तो दे आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ हीरोज। अब देश के आगे जाके कहेंगे कि भाई गोलवलकर सावरकर, तो बोले देश वाले कहेंगे भाई तो अपना काम कर, ये सब छोड़। तो इनके लिए जो आइडेंटिफाइबल फेसेस है, ये तो कांग्रेस में है। अब देखिए, इन्होंने लाख कोशिश की, और अब क्योंकि कांग्रेस वाले और इनका जो एक प्रचार का मशीन है, इनकी एक चीज की दाद इनकी देनी पड़ेगी आरएसएस की और इनकी विचारधारा के संगठनों की, कि एक ही किस्म के झूठ जो होते हैं, इसको इतने सातत्य से दोहराते रहना, अनथक बिन थक दोहराते जाना, ये इन्होंने बड़े सलीके से किया और इसके परिणाम इनको मिल रहे हैं। कि आज अब देखिए, मुझे हंसी आती है, आप सरदार की बात करते हैं, ये तो मैं कहता हूं, लेकिन भगत सिंह जी. मतलब, आर यू सीरियस, आर यू जोकिंग? मैंने सूरत में एक ये बुक फेयर था, इसमें ऐसे ही कोई आरएसएस की कोई संस्था का स्टॉल था, मैं भूल गया, विश्व हिंदू परिषद का या किसी का स्टॉल था, इसमें भगत सिंह का वो पोस्टर देखा था। अरे भैया, भगत सिंह वाज ऑल दैट व्हिच यू आर क्रिटिसाइजिंग, and you are damn against it। वो लेफ्ट था, वो सेक्युलर था, वो निरीश्वरवादी था। हाँ तो इनको, आई मीन, दे आर नॉट बॉदर्ड कि सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर 6 महीने का बैन रख दिया था। वो कभी बात नहीं करेंगे, वो कभी बात नहीं करेंगे कि सरदार पटेल ने जो है इनको कहा था कि भाई, सरदार पटेल का उस वक्त नजरिया ये था, सरदार पटेल इनको फासिस्ट नहीं मानते थे। सरदार पटेल ये मानते थे कि भाई ये अपने ही लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, तो अब आजादी चूंकि मिल गई तो आप हमारे साथ आके काम करो। तो सरदार का उनके प्रति ये नजरिया रहा, जिसको काफी लोग, काफी लिबरल लोग
गलती से और या तो फिर एक विचित्र ढंग से ऐसा मानते हैं कि सरकार वो सिंपैथेटिक, सरदार वो सिंपैथेटिक टू आरएसएस। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि ही वाज सिंपैथेटिक टू द कॉज ऑफ आरएसएस। You know, the way I have seen it is, it was a quintessential example of Patel pragmatism. बिल्कुल बिल्कुल। और you have to be in Gujarat to know how the Patel mind works, right? And even in Gujarat, in Charotar, you have to be in Charotar. You have to know Charotar's Patels, how they function, how they work. तो और इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए सरदार ने कभी ये नहीं कहा कि जाओ मुसलमानों को मार कर आओ। सरदार ने ये कभी नहीं कहा कि जाओ मॉब लिंचिंग करके आओ। वो लॉ एंड ऑर्डर में ही वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। वो आप कोई भी आइडियोलॉजी के क्यों ना हो। तो लेकिन चीज ये हुई कि 1950 में वो चले गए। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ऐसे लोगों से घिर गए और उस चीज में ये बिल्कुल गलती हुई कि सरदार का महत्व जवाहरलाल के मन में था, लेकिन बाकियों के मन में धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस का एक जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका एक बैकड्रॉप बनता था, उसमें धीरे धीरे करके सरदार अदृश्य होने लगे। ये हकीकत है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये क्या है कि हमने अक्सर ऐसा सुना है कि भाई अमेरिका में आपको अगर घर में सोफा नहीं चाहिए तो आप घर के बाहर रख देते हैं और जो जरूरत वाला है वो आके ले जाता है। तो सरदार का ऐसा हो गया, कांग्रेस ने बाहर रख दिया, ये लोग लेके चले गए। नहीं, हैरत की बात यह है उर्विश भाई कि गांधी ने जो आजादी से पहले किया उसी कद की बात सरदार ने आजादी के बाद की। To unify the countries from 500 odd principalities and kingdoms of sometimes insane rulers. बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है कि लोग सरदार पटेल की इस बात को अभी भी समझ पाए कि किस लेवल की एंटरप्राइज दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल मिसाल नहीं है। और कांग्रेस ने उसको यूज नहीं किया। नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जवाहरलाल का जो राज काफी अरसे तक रहा और वो जिस प्रकार के लोगों से घिरे, तो वो भी उनके मन में सरदार के प्रति एक कद्र थी, बेशक थी, और वो उन्होंने प्रकट भी की है। लेकिन उनके चले जाने के बाद धीरे धीरे करके संगठन में एक जो सरदार का रुतबा था वो एकदम से जैसे एक डिसअपियर हो गया और वो जैसे थे ही नहीं, ऐसी एक बात बन आई। तो ये बेशक कांग्रेस की गलती हुई और इसका इन्होंने इतना फायदा लिया कि अब ये पूरा इंटीग्रेशन करने वाले बंदे को साथ लेकर अब पूरा डिसइंटीग्रेशन करने पे तुले हुए हैं। तो आज सरदार होते तो इतने दुखी होते कि यार मैंने ज्योग्राफी को एक किया, अब आप समाज को बांट रहे हो। Right. No, it's fascinating. I'm glad that you focused on a figure like Sardar Patel. मैं आपके कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, वहाँ इस बात का जिक्र, आपने किताब भी लिखी उस पर। जी, मैंने गुजराती में 2005 में इनके ऊपर एक किताब लिखी थी। अभी भी थोड़ा बहुत एक और किताब के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, no, wonderful. I mean, one can go on and on about all kinds of subjects, but I wanted to essentially reach out and introduce myself to you because I applaud the fact that you're doing what you're doing, living in Ahmedabad in Gujarat.